Hello students. So in the previous video we almost completed the exercise 14a. Only last two sums were left and I told you that those sums are pretty easy, so you can even try it on your own. Those who have tried can fast forward the video for 10 minutes. Those who have not done, pay attention here. I'll quickly explain the two sums, but I expect you to do the calculation. There are two parallel chords AB and CD. Okay, O is the center of the circle and OM is perpendicular to AB, ON is perpendicular to CD. This MN is the distance between the chords. Okay, MN is the distance between the chord. In the question they have said that the radius of the circle is 15 centimeter. So the radius of the circle is 15 centimeter. I can draw the radius here also, 15 centimeter. Okay, and the distance MN between the two chords, find the distance MN between the two chords. So we have to find MN between the two chords of length 24 centimeter and 18 centimeter. So एक chord की length 24 है और एक की 18 है. ठीक है, if this is 24 this will be 12 12 and if this is 18 तो ये होगा 9 9. Correct? For that I'll write a statement here that perpendiculars from center bisect the chord. Okay, and that is why AM equals MB and CN equals ND. Okay, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस वाज 18 तो ये 9 9, ये 24 तो ये 12 12. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड MN. तो मैं क्या करूँगा, पहले टेक दिस ट्राइंगल AMO. इसमें ये 15 है, ये 12 है, तो आई कैन फाइंड OM. देन टेक दिस ट्राइंगल हियर, दिस इज 15, ये ON और ये 9. सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड ON. फिर ये OM और ON को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा MN. ओके, इन triangle AMO using Pythagoras theorem, OM square plus AM square equals AO square. Okay, so OM square plus AM is 12 square and AO is 15 square. Solve this, you will get OM. Then again, I'm giving you the outline of the sum. In triangle CNO, using Pythagoras theorem, ON square plus CN square equals CO square. Okay, so CN is 9 square and CO is 15 square. Solve this, you will get ON. Okay, and then MN will be OM plus ON. Final answer. Okay, so just pause the video and complete this sum. Pause the video and complete this sum. Next, question number 18. Now in this question, in the figure given below, O is the center of the circle, AB and CD are two chords of the circle, OM is perpendicular to AB, so they have told that OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. AB, this full AB is 24. If this AB is 24, that means this will be 12 12. Okay, OM is 5, OM is 5, ON is 12.
ON is 12. Find the radius of the circle. पहले पूछा है find the radius of the circle. Let's join. This is the radius of the circle. Okay. पहले तो मैं लिखता हूँ, मैंने ये 12 12 लिख दिया, डायरेक्टली नहीं लिख सकते. I'll have write to statement that perpendicular from center bisects the chord. See, OM is perpendicular to AB. Okay, perpendicular from the center bisects the chord. That means AM will be equal to MB. After writing this, you can write this AM and MB are 12. Okay, now I have to find the radius of the circle. तो simple है, ये triangle दिख रहा है यहाँ पे, इस triangle को solve कर दूंगा. This is 5, this is 12 and this is the hypotenuse. So I'll simply apply Pythagoras. Using Pythagoras theorem, OM square plus AM square equals AO square. Okay, so 5 square plus 12 square equals AO square. That is 25 plus 144 equals AO square. So AO square equals 169. AO will be 13. Okay, AO मतलब radius. तो radius क्या मिल गया? 13 मिल गया. Okay. Now in the second part, this was the first part of the question. Now in the second part of the question, they want me to find the CD, chord CD. Chord CD ढूंढना मतलब CN ढूंढना पहले और उसको डबल कर देना. ठीक है, CN ढूंढना मतलब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे. सो ये भी रेडियस है, सेंटर से लेके कॉर्ड के पॉइंट तक. दिस इज ऑल्सो द रेडियस, तो ये भी 13 होगा. ओके, CO इज इक्वल्स टू द रेडियस, दैट मीन्स इट इज़ 13 सेंटीमीटर. ये भी 13 है, ये 12 है, तो ये CN मिल जाएगा पाइथागोरस से. ओके, सो इन ट्राइंगल CNO using Pythagoras theorem, ON square, always remember hypotenuse सही चूज करो. ये 90 है ना, तो this is the hypotenuse. रेडियस ही hypotenuse होता है. So this is 12 square plus CN I don't know and CA is 13 square. So when you solve this, you will get CN as 5 centimeter. Okay, CN मिलेगा 5 centimeter. If CN is 5 centimeter, CD will be 5 into 2, 10 centimeters. Okay, with this we complete exercise 14A. We can start with exercise 14B. Before that, we'll have to study about the properties of arc of a circle. Okay, so let's list the properties of arc of a circle. Now mind it that these properties are very important, because as it is, these properties will come in 10th standard as it is, same to same properties. So it is better you understand here, then later on it will be very helpful for you. Okay, and there are simple properties, not very difficult. See, the first property says I am drawing two circles here, but the sums are based on one circle only. Okay, so see, they say that if there is an arc AB, okay, and there is an arc PQ, okay, और ये center of the circle है. अगर जो angle arc AB center of the circle के साथ बनाता है, this angle, if this angle and the angle which PQ makes with the center of the circle, if these two angles are same,
इफ these two angles are same, that means this arc will also be same. ये आर्क का मेजरमेंट भी सेम होगा. समझ में आया? अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू. ये आर्क का भी लेंथ होता है, इसको मेजर कर सकते हैं लेंथ को, तो आर्क का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा. ओके, सो द स्टेटमेंट्स इन इफ टू आर्क्स subtend equal angles. सबटेंड मतलब मेक्स. ओके, जैसे ये आर्क ने ये एंगल बनाया सेंटर में, तो इसे कहते हैं इसने सबटेंड किया ये एंगल. ठीक है, या मेक्स, सिंपल वर्ड इज मेक्स. सो इफ टू आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, देन दे आर इक्वल. दे आर इक्वल मतलब आर्क्स आर इक्वल. ओके, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि अगर एंगल्स इक्वल है सेंटर के तो आर्क भी इक्वल होगा. ठीक है, अब इसका उल्टा भी ट्रू है. इसका उल्टा क्या होगा ट्रू? कि अगर बोला है कि आर्क ए बी एंड आर्क पी क्यू आर इक्वल, अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो जो ये एंगल बनाएंगे ना सेंटर में, वो एंगल भी इक्वल होगा. ओके, सो इफ टू आर्क्स आर इक्वल, ओके, दे सबटेंड equal angles at the center. ओके, अगर ये दोनों आर्क्स इक्वल दिया है क्वेश्चन में, उल्टा उसका, अगर दोनों आर्क्स इक्वल दिया है तो ये एंगल इक्वल बनाएंगे सेंटर में. समझ गए? वेरी वेल. ओके, अब ये एक ही ट्राइंगल में भी हो सकता है. मतलब समझो अगर यहाँ पे एक आर्क बनाया है ऐसा, एंड इट इज टोल्ड दैट दिस ए बी एंड दिस पी क्यू आर इक्वल, तो अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो इन दोनों आर्क ने बनाया है सेंटर में, दीज बोथ एंगल विल बी इक्वल. समझ के? वंस रिवाइज इट कि अगर एंगल इक्वल है सेंटर के तो आर्क भी इक्वल है, अगर आर्क इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है. ठीक है, एट द सेंटर. ओके, नाउ सेम प्रॉपर्टी गोज फॉर सर्कमफरेंस ऑल्सो. सर्कमफरेंस मतलब वो उसका कोरोलरी है. लाइक अगर ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक आर्क है ए बी और यहाँ पे एक आर्क है पी क्यू. ओके, अगर ये ए बी आर्क सर्कमफरेंस पे एक एंगल बनाता है एंड ये पी क्यू आर्क सर्कमफरेंस पे ये दूसरा एंगल बनाता है. सर्कमफरेंस मतलब ये बाउंड्री, सेंटर नहीं है इसके अंदर. देखो ये बाउंड्री है इसके अंदर, डायरेक्ट सर्कल के ऊपर एंगल बनाया. इस आर्क ने सर्कल के ऊपर एंगल बनाया, इस आर्क ने भी सर्कल के ऊपर एक एंगल बनाया. ओके, इसमें भी सेम लॉज अप्लाई होंगे. दैट अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ओके, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों आर्क इक्वल होंगे. समझ में आया? ओके, सो सेम स्टेटमेंट्स, इफ टू आर्क्स आर इक्वल दे मेक इक्वल एंगल्स एट, खाली सेंटर के बदले में लिख दूंगा सर्कमफरेंस. अंडरस्टूड? और फोर्थ, इफ टू आर्क्स मेक इक्वल एंगल्स एट सर्कमफरेंस, देन दे आर इक्वल. दे मतलब आर्क. ओके, सो ये फर्स्ट वाला और ये फोर्थ वाला सेम है, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला सेम है. समझ गया? सिंपल है कि अगर आर्क इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल होगा. ठीक है, ज़्यादा क्या यूज़ होगा? ज़्यादा होगा कि आर्क इक्वल देंगे और हमें एंगल इक्वल यूज़ करना होगा. ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन दिस 4 पॉइंट्स. Copy it down. We will write these statements in short form while solving the sums. That I'll tell you while solving the sums itself.
So now, apart from these four statements, four properties we studied, there are two more properties, and they are I'll write the statement first. Angle subtended by the arc at center is twice angle subtended at any point on the circle. Any point at the circle can also be written as circumference. Now what does this mean? This means that, let's say if I have one circle here and there is this arc AB. Okay, arc AB. This arc is making an angle. This is the center O. This arc makes an angle in the center. Let's say this angle is 60 degrees. Okay, so angle subtended by the arc at the center is twice the angle subtended at any point on the circle. Means यही दोनों पॉइंट से अगर मैं एक और एंगल बनाऊँ, सेंटर में नहीं और कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, ये आर्क है, इधर नहीं, इस आर्क को छोड़ के बाकी ये जितना एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे इफ़ आई मेक एनी एंगल फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स ओनली, सो लेट्स से मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये ऐसा. सो ये दो पॉइंट्स ने सेंटर में क्या एंगल बनाया है, 60 डिग्रीज, और सर्कल के पॉइंट पे पीछे, ठीक है, यहाँ सर्कल के ऊपर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ये जो एंगल होगा ना, दिस एंगल विल बी 30 डिग्रीज. सो जो एंगल सेंटर में होता है इट इज़ ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. ओके, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल मतलब समझो मैं यहाँ पे एक और आर्क बनाता हूँ, आर्क ए बी, ये सेंटर में बनाया 60 डिग्रीज, ठीक है, तो समझो मैंने ये पॉइंट पे आर्क बनाया, तो यहाँ से ए से इधर, बी से यहाँ पे, और ये वाला एंगल. सो ये ए बी हैज़ सबटेंडेड एन एंगल इन द सेंटर and this same AB points have subtended the angle on the arc on the at any point on the circle. Okay, so this angle will be half of this angle, or you can say this central angle will be twice the angle at any point, so this will be 30 degrees. Understood? If I draw a simple diagram that AB is here, okay, AB center में समझो अगर AB ने बनाया है और ये ए बी ने सर्कल पे बनाया है, ठीक है. सो दिस एंगल, इफ़ लेट्स से दिस एंगल इज़ 20 डिग्रीज, देन दिस एंगल, सेंट्रल एंगल, विल बी ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. सो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, दिस इज़ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड दिस इज़ एट सेंटर. सो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है इसका, तो सेंटर विल बी 40 डिग्रीज. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल विच विल बी यूजफुल इन सम्स. Okay, angle subtended by the arc at the center is twice angle subtended at any point on the circle. Okay. And don't confuse it with the previous law which we did. जैसे उसमें पिछले वाले में क्या किया था, एक आर्क है, ठीक है, और ये आर्क एक एंगल बना रहा है यहाँ पे. समझो एक और आर्क है, लेट्स से बी सी, ये वाला. दिस आर्क इज़ मेकिंग दिस एंगल हियर लाइक दिस. सो ये ए बी आर्क ने ये एंगल बनाया, बी सी आर्क ने ये एंगल बनाया. अगर ये दोनों आर्क सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे. इफ़ दीज टू आर्क्स आर इक्वल, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट टाइम इन द बिगिनिंग.
I had already made you. If two arcs are equal, then they make equal angles at the circumference. ठीक है, ये दोनों equal arcs है. Now in this same statement, you can write it like this also, that ये अगर circle है, यहाँ पे एक arc है AB. ठीक है, if this arc AB is making an angle here, let's say this angle is 60 degrees, and this same arc AB is making another angle here. Okay, so अगर ये arc AB है ना, और ये दो एंगल बना रही है दोनों सर्कल के ऊपर ही, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स जो सर्कल के ऊपर बनाते हैं वो दोनों एंगल सेम होंगे, बिकॉज ये सेम ही आर्क है. ये भी AB से बन रहा है, ये भी AB से बन रहा है. ठीक है, दोनों सर्कल के ऊपर बन रहे हैं, तो डेफिनेटली बोथ विल बी इक्वल, बिकॉज इक्वल आर्क हो गया ना. ये भी AB है और दूसरा भी AB है. ठीक है, आर्क्स अगर इक्वल होते हैं तो एंगल इक्वल होता है. यहाँ पे तो आर्क सेम ही है, कॉमन आर्क है, तो डेफिनेटली कॉमन आर्क विल मेक इक्वल एंगल्स. So I hope this thing is clear. Now here there is one type of angle which is made, like let's say this is the center और ये diameter है, ठीक है, and let's say this is the arc AB. So this arc AB is making an angle at the center. ये center वाला angle है arc AB का, ये center है O. Okay, and if I join this line AC, so ये जो line AB arc AB है, this is also making an angle on the circle here. Can you imagine? See, AB से center में कौन सा angle बना, ये O AOB, और circle पे कौन सा बना, AB से ACB, here ACB. Okay, so center में बना AOB, पीछे बना ACB. Okay, सो ये हो गया सेंटर का एंगल, ये हो गया पीछे का एंगल. इनका रिलेशन क्या होता है, सेंट. इसमें मैंने ये क्यों ड्रॉ किया डायग्राम, बिकॉज यू सी ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन सेंटर के एंगल के लिए भी है और यही सेम लाइन से पीछे भी एंगल बन रहा है. ओके, सो आर्क इज सेम, वन इट इज़ मेकिंग एट सेंटर एंड अनदर एंगल इट इज़ मेकिंग एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. सो वी नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम. अगर ये 30 है, सो दिस विल बी ट्वाइस द एंगल मेड एट सेंटर, सो ये होगा 60. ओके, एक एंगल अगर सेंटर में बनता है और एक एंगल सर्कल पे बनता है तो उनका रिलेशन क्या होता है, सेंटर एंगल इज ट्वाइस द एंगल ऑन सर्कमफेरेंस. ओके, बट अगर दोनों सर्कल पे बन रहे हैं, दोनों पीछे बनते हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगे. ओके, नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेटमेंट. एंगल इन सेमी सर्कल is 90 degrees. Means if we have a circle like this, and let's say this is the diameter of the circle AB, diameter of the circle. Now using these 2 points AB, if you are making an angle on the circle, नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, ठीक है. अगर ये दोनों पॉइंट से एक एंगल बनाया है ऐसा यहाँ पे, या नीचे बनाया समझो इधर, ये दोनों पॉइंट्स हैं डायमीटर के 2 पॉइंट से. एंगल इन सेमी सर्कल क्यों बोला इसे, बिकॉज डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो फ्रॉम दीज पॉइंट्स सर्कल के ऊपर एंगल बनाओ. डायमीटर के 2 पॉइंट से अगर सर्कल पे एंगल बनाया है तो दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्रीज. डायमीटर से जो एंगल बनता है दैट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज. या ऐसा कह सकते हैं डायमीटर एक सेमी सर्कल बनाता है ऐसा. सो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 90 degrees. Okay, so remember this, AB is the diameter. Okay, these are all the points which will help us in solving the sums from this exercise. You can draw this diagram and write this statement. Let's start with the exercise 14B. For revision, you can just rewind the rules once again. Rewind the video and you can watch it once again to understand the rules better. During the sums also, I will keep reminding you what the theorems are, what the laws are. So
So stay alert. Exercise 14B. The first sum. See and understand how I am writing the statements, the points, everything is important here. The diagonal is the diameter is AB, O is the center of the circle. Okay, there is 2 points D and C. And these two are equal. See, one more thing I would like to tell you here, that the properties which we study were arc properties. Okay, मतलब जैसे मैंने एक सर्कल बनाया था and I told you that this arc AB, ये arc AB है और arc AB ने एंगल बनाया ये, ठीक है. ये arc अगर बोले या इस AB को मैं ज्वाइन कर दूँ, so this becomes a chord. ओके, तो अगर आर्क, दो आर्क अगर सेम है, जैसे यहाँ पे एक और सर्कल है एंड देयर इज आर्क पी क्यू, एंड इफ दे आर सेइंग दैट दिस आर्क पी क्यू एंड दिस आर्क ए बी आर इक्वल. ओके, सो अगर आर्क इक्वल होता है तो ये कॉर्ड भी इक्वल ही होता है, जो इस दो पॉइंट से, इसी दो आर्क से जो कॉर्ड बनता है डायरेक्टली ज्वाइन करके, दैट कॉर्ड इज ऑल्सो इक्वल. ओके, मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट in the statements, in the theorems, they have used the word arc, that angle subtended by the arc, angle subtended by arc PQ, arc AB. So you can also write angle subtended by chord AB or chord PQ. Arc हो या chord हो, दोनों के लिए वो theorems applicable है. All the theorems which we study, if it is a chord or a arc, doesn't matter. अगर arc equal होता है तो chord भी equal है, chord equal है तो arc भी equal है. Okay, so those theorems are applicable for both chord and arc. So here the question is, this is all the information given to us. An angle DAB is given as 90. We have to find angle ABD and angle ABC. Okay, see, first of all, see this triangle ADB. This AB is a diameter. What is the last property which we studied? That if 2 points of the diameter make an angle on the circle, these 2 points of the diameter are making this angle on the circle. ये C को भूल जाओ, ठीक है. ये जो दो पॉइंट्स है ए बी, डायमीटर के पॉइंट्स, दे आर मेकिंग दिस एंगल ऑन द सर्कल. ओके, सो ए बी इज द डायमीटर. ओके, therefore angle ADB will be equal to 90 degrees. एंगल ADB, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज होगा. हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट अगर डायगोनल है एंड इफ डायगोनल इज मेकिंग एनी एंगल, डायगोनल के दो पॉइंट से अगर एक एंगल बनता है तो दैट एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्रीज. ओके, यू राइट द रीजन एज एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि डायगोनल जो होता है, सॉरी डायमीटर जो होता है वो एक सेमी सर्कल बनाता है. ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट से, डायमीटर के दो पॉइंट से कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल डी. सो दिस एंगल डी इज़ 90 डिग्रीज. ओके, अब आपके मन में आएगा कि ये सी भी तो 90 होना चाहिए, बट यू सी ए और बी से ये एंगल सी नहीं बन रहा है. ये ए और बी से, ये ए तो डी की तरफ जा रहा है एंड दिस बी लाइन इज़ गोइंग टुवर्ड्स सी.
सो ये ADCB तो एक क्वाड्रिलैटरल बन गया, ADCB. अगर डायरेक्टली A एंड C ज्वाइन करें, सी इफ़ यू डायरेक्टली ज्वाइन दिस A विथ C एंड B, देन दिस विल बी 90 डिग्रीज. डायामीटर के 2 पॉइंट से वो एंगल बनना चाहिए, ठीक है. सो ये C और ये B, ये डायरेक्टली A डायरेक्टली जॉइंट नहीं है C को, ठीक है, डायरेक्टली जॉइंट नहीं है, इसलिए ये 90 नहीं होगा. बिकॉज C जो एंगल है वो बना है D और B से, D एंड B से बना है ये एंगल, एंड DB इज़ नॉट अ डायामीटर, ओनली AB इज़ डायामीटर. सो डायामीटर से जो एंगल बनता है सर्कल के ऊपर, दैट इज़ 90 डिग्रीज. ओके, सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज़ 70. नाउ इन दिस ट्राइंगल ADB एक 70 है, एक 90 है, तो ये थर्ड एंगल मिल जाएगा ईजिली. ओके, ABD ये वाला एंगल मिल जाएगा इजीली. सी इन ट्राइंगल ADB, in triangle ADB one angle is 90 degrees, one angle is 70 degrees, plus this third angle, angle ABD equals 180 degrees. 70 plus 90 plus this angle, तीनों को ऐड करके टोटल क्या है 180 डिग्रीज. ओके, एंगल ABD समझ रहे हैं, 70 plus 90 plus this unknown angle, total is 180 degrees. So ABD will be 180 minus 90 minus 70. So this value will be 20 degrees. Okay, angle ABD is 20 degrees. So ये एंगल मिल गया 20 डिग्रीज. दिस इज़ व्हाट वी हैड टू फाइंड, एंगल ABD. फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है. सेकंड आई हैव टू फाइंड ABC, मतलब ABC मतलब ये पूरा एंगल ढूंढना है, पूरा ABC बराबर ना. ABC मतलब ये पूरा एंगल हुआ यहाँ पे फुल. ये इतना पता है 20 है, ये बाकी का नहीं पता कितना है. ओके, बट यू नो दैट दिस AD एंड DC आर इक्वल, ठीक है. कॉर्ड इक्वल दिया है, कॉर्ड इक्वल मतलब ये आर्क भी इक्वल ही होता है, कॉर्ड और आर्क सेम है, ठीक है. तो ये DC और AB इक्वल है. अगर ये AD और DC इक्वल है तो द एंगल विच दे मेक, दिस DC ने जो एंगल बनाया है सर्कल पे और DC ने जो एंगल बनाया है, DC ने और AD ने जो एंगल बनाया है सर्कल पे, यू कैन सी दिस DC हैज़ मेड दिस एंगल एंड AD हैज़ मेड दिस एंगल. सो दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बी सेम. ओके, DC ने बनाया है ये वाला एंगल, दिस पॉइंट DC हैज़ मेड दिस एंगल हियर एंड AD हैज़ मेड दिस एंगल. सो अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो दे विल मेक इक्वल एंगल्स. ओके, सो आई विल राइट हियर दैट chord AD equals chord DC. Okay, therefore angle ABD will be equal to, इस एंगल का नाम क्या दूँ, DBC. If these two chords are equal, then the angle which they make are also equal. और इसका रीज़न क्या होता है, equal chords subtend equal angles. समझ में आया. सो दिस एंड दिस, सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल, तो मतलब ये भी 20 हुआ, करेक्ट. देयरफॉर एंगल DBC विल बी 20 डिग्रीज. इफ़ एंगल DBC इज़ 20 डिग्रीज, मतलब मुझे ढूंढना क्या है अल्टीमेटली, एंगल ABC. ओके, मतलब ये पूरा एंगल ABC, मतलब ये पूरा एंगल ढूंढना है. तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 20 + 20 40 डिग्रीज. दिस फुल एंगल विल बी 40 डिग्रीज. सो ABC इज़ 20 + 20, दैट इज़ 40 डिग्रीज. दिस इज़ माई आंसर.
ओके, दिस वॉज द फर्स्ट सम. सो थोड़ा नया चीज़ सीख रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. डू नॉट वरी, डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट गेट demotivated. This is the first time you are doing circles chapter. This is the first time you are doing these properties. So even if you are getting confused, it is quite normal. You can just rewind the video, read the steps again. You will understand the property. Just make sure that you read the properties, the 6 properties which I gave you beforehand. Keep them handy, keep reading them, keep understanding them properly. Okay, those same properties I have used here. Okay, see if I turn the circle like this here. ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दैट अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो जो एंगल ये बनाएंगे दैट एंगल विल बी सेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन. This is the diagram here. Now we have to find that what is the value of angle ACB. ACB मतलब ये वाला एंगल की वैल्यू ढूंढनी है. ठीक है, एंड इन द क्वेश्चन यू कैन सी, यू कैन वेरी वेल सी दैट this chord AB, ये chord है AB. AB is a chord. Okay, and CD is also a chord, and they have told that this chord AB and this chord CD are equal. You can read the question. In a quadrilateral ABCD, AB is equals to CD. तो ये दोनों equal है. AB equals CD. अगर chords equal है, ये वाला chord equal है और ये वाला chord equal है, तो जो एंगल ये chord बनाएगा and जो एंगल ये chord बनाएगा वो एंगल सेम होंगे. Agree? Because equal chords make equal angle. Okay? So ये chord कौन सा एंगल बना रहा है? AB. AB is making this angle. Can you see? Which angle is this? ACB. And this CD is making this angle here. Okay, इन दोनों पॉइंट से यहाँ पे तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, ऐसे यही एंगल बन रहा है. सो मतलब CD is making which angle? CAD. And AB is making which angle? ACB. Okay, so I will write here that angle ACB will be equal to angle CAD. Okay, angle ACB is equals to angle CAD. So ये वाला जो एंगल है एंड ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हुआ बिकॉज AB ने इसको बनाया, CD ने इसको बनाया और AB और CD इक्वल है. आई विल राइट द रीज़न. equal chords make equal angles. So that means अगर ये 35 है तो this angle will also be 35 degrees. Okay, so I'll write here therefore angle ACB equals 35 degrees. Okay, because the chords are equal, so they are making equal angles. Okay, and they are asking me to prove that this line AD and this line BC are parallel to each other. ये prove करो. ठीक है. Now see, observe carefully. ये जो लाइन AD है और ये जो लाइन BC है, you can see there is a Z forming here. ये Z बन रहा है यहाँ पे और उस Z में ये भी 35 है और ये भी 35 है. मतलब these are alternate angles. Okay. Generally what we do that when in a diagram if you have been given that these two sides are parallel और ये ऐसे joined है, तो हम कंक्लूड करते हैं कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, देयर दे हैव गिवन अस दैट द लाइन्स आर पैरेलल, देन वी कंक्लूड दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स. अब इसका उल्टा करना है कि एंगल्स ऑलरेडी पता है कि इक्वल है. अगर ये एंगल्स इक्वल है दैट मीन्स 100% दीज लाइन्स विल बी पैरेलल. अगर ये लाइन्स पैरेलल नहीं होती तो ये एंगल इक्वल नहीं हो सकते. उल्टा, समझ रहे हो? सो एंगल ACB and angle CAD are alternate angles.
ओके, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। उल्टा समझ में आ रहा है, हमेशा लाइंस पैरेलल देती है एंड वी यूज दैट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। इस बार ऑल्टरनेट एंगल्स, ये Z बन रहा है एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स AD विल बी पैरेलल टू BC। Next, now similar to this question is question number 10 of this exercise. Last question of this exercise is similar to this question, so I'll do that question first. I'll do question number 10 first. कंटिन्यूटी होगी तो समझ में अच्छे से आएगा। थोड़ा सिमिलर है, पूरा नहीं। Quadrilateral, there is a quadrilateral PQRS inside a circle. Okay, and they have told us that PS equals QR, and we have to prove that PQRS is an isosceles trapezium. हमें क्या प्रूव करना है? PQRS is an isosceles trapezium. सबसे पहले ट्रपेजियम क्या होता है? ट्रपेजियम मीन्स ऐसा फिगर जिसकी एक साइड पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, एंड आइसोसेलेस ट्रपेजियम क्या होता है? जिसकी एक साइड पैरेलल तो है ही, बाकी दोनों साइड है ना वो इक्वल है। समझ रहे हो? ट्रपेजियम मीन्स व्हाट? दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। ओके, एंड आइसोसेलेस मीन्स द अदर पेयर is equal. ओके, सो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है और जो दूसरा पेयर है वो इक्वल है। ओके, सो यहाँ पे मुझे अभी इसको प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा? अगेन आई विल जॉइन दिस PR. ओके, नाउ दिस chord PS is making this angle. ये PS जो है chord, ये कौन सा एंगल बना रहा है? ये वाला एंगल। और ये जो QR chord है, दिस इज मेकिंग दिस एंगल। सो chord PS is equal to chord QR. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अगर ये दोनों इक्वल है मीन्स जो एंगल ये बना रहे हैं वो एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल। सो ये कॉर्ड ये एंगल बना रहा है, ये कॉर्ड ये एंगल बना रहा है, सो इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल। देयरफॉर दिस एंगल, इसको नाम देता हूँ PRS, इज इक्वल टू एंगल QPR। रीजन, equal chord makes equal angle. Okay, equal chords make equal angle. So ये दोनों chords equal थे, तो जो एंगल इन chords ने बनाए है वो एंगल भी इक्वल है। ओके, तो ये मिल गया। नाउ फॉर दीज टू लाइन्स PQ एंड SR, ये एक Z बन रहा है, यहाँ पे ये Z बन रहा है जिसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ओके, तो अगेन एंगल PRS एंड एंगल QPR आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, करेक्ट, फॉर दीज टू लाइन्स PQ एंड SR। ओके, देयरफॉर PQ is parallel to SR.
सेम तरीके से प्रूव किया यहाँ पे भी दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर. तो अब मुझे मिल गया वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज़ पैरेलल एंड द अदर पेयर इज़ ऑलरेडी गिवन एज इक्वल. ओके, सो नाउ in quadrilateral PQRS, PQ is parallel to SR and PS is equal to QR. Therefore, it is a isosceles trapezium. अंडरस्टूड. आइसोसेलेस ट्रपेजियम मतलब जिसके एक वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड द अदर पेयर इज इक्वल. यहाँ पे इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ था, हमें सिर्फ पैरेलल प्रूफ करना था. इन द सेम मैनर वी डिड इट. ओके, नाउ देयर आर 10 सम्स इन दिस एक्सरसाइज आउट ऑफ विच वी हैव कंप्लीटेड 3. we'll stop here today. In the next video I'll complete this exercise. That's it for today. Thank you.